Good morning, good afternoon, good evening, whensoever you're watching this video. Welcome to all to the third video of current electricity. In the previous class, we had discussed about the series and parallel combination. Now we'll be doing numericals based on series and parallel combination, starting from the very beginning. That means from the very basic. So the two formulas which we are using everywhere over here is that in case of parallel combination, the resistance is like this: 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and so on. That is in parallel combination. In case of series combination, RS series combination, it is the formula is RS is equal to R1 plus R2 so on till R3. Whatsoever the number of resistors are there. Another thing, what is we are going to consider here, V is constant and I is divided. And in case of series, we'll say I is constant and V is divided. Only these two basic formulas we'll be using to do all the numericals from now onwards. Okay. All series parallel combination of this class are based on these two basic formulas. Okay, let's start. Let me start with a basic question. The basic question is find the total equivalent resistance total current and voltage across each resistor. Let's see, this is a common question and we'll be doing different parts of it. I'm starting from the very basic level. So let me start off with the very first circuit. In the very first circuit, I've got two resistors, R1 which is equal to 1 ohm or R2 is equal to 2 ohm. And this is connected to a 6 volt battery. सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ओम का रेजिस्टर है, एक 2 ओम का रेजिस्टर है एंड दे आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी. अब सर्किट में से देख सकते हो कि R1 और R2 दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं. R1 और R2 दोनों पैरेलल में हैं, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कितनी होगी? रेजिस्टेंस पैरेलल में होगी RP 1 by R. I'll just write R1 and R2 are in parallel. So R1 by Rp, that means total resistance is 1 by R1 plus 1 by R2. टोटल कितना हो गया? 1 by 1 plus 1 by 2. आंसर एलसीएम हो गया इसका 2. ये लिखा 2 plus 1, that means Rp is equal to 2 by 3 ohms. एक 1 ohm था, एक 2 ohm था, दोनों का एलसीएम लिया 2 plus 1 2 by 3 ohm हो गया. ये टोटल क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया. अब V टोटल यहाँ पर क्या है? V टोटल इज इक्वल टू 6 volts. What is R total? R total is equal to Rp which is equal to 2 by 3 ohm. अब टोटल करंट की बात कर रहे हैं. टोटल करंट क्या होगा? ओम्स लॉ सबको पता है, V is equal to IR. तो I क्या हो जाएगा? I is equal to V by R. तो R total I total is equal to V total divided by R total. V total की वैल्यू 6 volts, R total की वैल्यू 2 by 3. कितना हो गया? 18 by 2 which is equal to 9 amperes. देखिए टोटल करंट 9 amperes. इतना ज़्यादा करंट, हाँ 9 amperes करंट ही I total. अब हमें पता करना है ये करंट डिवाइडेड कैसे होगा. वैसे तो सबको पता है कि जितना रेशियो ऑफ रेजिस्टर होता है उसके इन्वर्स रेशियो में करंट डिवाइड हो जाता है, पर हम एक ईजी और तरीका देखते हैं. अब R1 और R2 दोनों के दोनों कैसे हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो जिन दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? सेम रहेगी. R1 and R2 are in parallel. So parallel to 6 volt battery. So what is V1? V1 में वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या है? वो भी 6 वोल्ट है. वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या है? वो भी 6 वोल्ट है.
क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अब इनके अक्रॉस करंट क्या होगा? अगर I1 की बात करूं तो हो जाएगा वो V1 बाय R1। अब V1 की वैल्यू पता है 6 वोल्ट, R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 6 एम्पीयर। अब बात करते हैं I2 की। I2 क्या है? दोबारा 6, बट R2 क्या है? 2, तो ये V2 बाय R2 क्या हो गया? 6/2 विच इज इक्वल टू 3 एम्पीयर। अब टोटल करंट क्या है यहाँ पे? I1 प्लस I2 9 एम्पीयर। ये आ रहा करंट। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ क्या करा क्या हमने। दो रेजिस्टर्स लिए, दोनों पैरेलल में थे, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली। कैसे निकालते हैं? उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं, ये निकाल ली। RP इसका खुद का रेसिप्रोकल हो गया 2/3 ओम्स। अब V टोटल 6 वोल्ट था, R टोटल था 2/3 ओम्स। I टोटल निकालने के लिए V टोटल बाय R टोटल लिया, आ गया 9 एम्पीयर। अब हम करंट भी निकाल रहे हैं, हमारा एक चेक भी हो रहा है। पहली तो बात है, दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में थे 6 वोल्ट बैटरी के। क्योंकि 6 वोल्ट बैटरी के साथ पैरेलल में थे, तो क्या हुआ? इनके अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो सेम थी। क्या थी? 6 वोल्ट। तो इसके थ्रू हमने कहा V1 और V2 दोनों 6 वोल्ट हो गए। अब I1 की वैल्यू क्या होगी? V1 बाय R1। V1 की वैल्यू 6, R1 की वैल्यू 1, आ गया 6 एम्पीयर। एस I2 की वैल्यू क्या हो? V2 बाय R2 इट बिकम 6/2 3 एम्पीयर। ठीक है, चेक करने के लिए हमने क्या करा कि अब ये टोटल करंट I1 कितना है मेरा? I1 क्या है? 6 एम्पीयर। I2 क्या है आपका? 3 एम्पीयर। इन दोनों को ऐड करा, कितना आ गया? 9। I टोटल 9 एम्पीयर निकाला। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप। अब 2 की जगह हम क्या कर लेते हैं? 3 रेजिस्टर ले लेते हैं, बस थोड़ा अपना काम और स्मूथ करने के लिए। R1 इज 1 ओम, R2 इज 2 ओम, और तीसरा एक और रेजिस्टर लगा दिया R3 इज इक्वल टू 3। तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, बैटरी लगा दी, वही अपनी पुरानी बैटरी लगा दी 6 वोल्ट की। अब निकालेंगे क्या? टोटल रेजिस्टेंस लिख दो। R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल में है, तो 1/RP विच इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। कितना हो गया? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम हो गया इसका 6 प्लस 3 प्लस 2 9 10 11 11/6। तो R टोटल जो कि RP के बराबर है, कितना हो गया? उल्टा हो गया 6/11 एम्पीयर। चेक कर लेते हैं। 3 2 एंड 6 9 11 एम्पीयर। 6/11 एम्पीयर 6/11 सॉरी ओम्स। 6/11 ओम्स। V टोटल था आपका 6 वोल्ट्स, तो I टोटल कितना हो जाएगा? अभी हमने करा था V टोटल बाय R टोटल, कितना आ गया? 6/6/11। तो कितना हो गया ये तो 11 एम्पीयर लग रहा है। हाँ जी, 11 एम्पीयर हो गया। अब देखते हैं वोल्टेज जो टोटल है वही V1 है, वही V2 है, वही V3 है। क्यों सारे सेम है? क्योंकि सारे के सारे किस में हैं? पैरेलल में कनेक्टेड है। I टोटल की तक मेरे को वैल्यू मिली है, और V1 और V2 V3 सभी कितने हो गए? 6 वोल्ट के हो गए। अब निकालना शुरू करते हैं I1 क्या हो जाएगा? V1 बाय R1। क्या वैल्यू आई? 6 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 6 एम्पीयर। I2 की वैल्यू देखते हैं क्या आई? V2 बाय R2 विच इज इक्वल टू 6/2, कितनी आ गई? 3 एम्पीयर। I3 की वैल्यू कितनी आई? V3 बाय R3 विच इज इक्वल टू 6/3, ये कितना हो गया? 2 एम्पीयर। अब लगाते हैं I टोटल कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3, दोबारा 11 एम्पीयर। ये क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट पे सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में। आई होप पैरेलल आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार बता देती हूँ, 3 रेजिस्टर्स थे, पैरेलल में थे, इनको पैरेलल में अरेंज कर रखा है, तो टोटल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स ऐड करने से हुई, इससे टोटल रेजिस्टेंस आ गई। टोटल रेजिस्टेंस के बाद हमने क्या करा? आर टोटल ये हो गया इसका 6/11 एम्पियर्स। वी टोटल आपको गिवन था, उससे आई टोटल निकाल लिया, वी टोटल बाय आर टोटल, ये आपका 11 एम्पियर्स। हमने फिर कहा वी टोटल V1 V2 V3 सब इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर्स बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो सबकी वोल्टेज सेम हो गई। अब हर एक का रिस्पेक्टिव करंट निकाला, I1 V1 बाय R1, I2 V2 बाय R3, V3 I3 इज इक्वल टू V3 बाय R3। 3 करंट निकल कर आ गए। इन तीनों का को ऐड करोगे 6 प्लस 3 प्लस
2 कितना आया था 11 एम्पियर, जो कि टोटल करंट के बराबर है। हमें क्रॉस चेक भी कर लिया अपना आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। लेट्स से एक सीरीज वाला सर्किट ले लेते हैं। थर्ड, इसमें दो रेजिस्टर्स ले लेते हैं अपने, रेजिस्टर्स वही पुराने 1 एम्पियर और 2 एम्पियर का 2 ओम्स का रेजिस्टर, अपनी पुरानी वही बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में है तो R टोटल RS के बराबर R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 ओम्स। V टोटल आपको पता ही था, V टोटल कितना था, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी तो V टोटल हो गया। व्हाट इज I टोटल नाउ, V टोटल बाई R टोटल। R टोटल और RS सेम ही है, यही R टोटल है, तो क्या हो गया 6/3 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट कम हो गया है, 2 एम्पियर है। लेट्स चेक कि 2 एम्पियर असली में है नहीं है, देखते हैं जरा। अब आपके पास जो टोटल करंट था वही टोटल करंट R1 और R2 में जा रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट डिवाइड नहीं होता। करंट सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, सो I टोटल हियर इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। कितना हो गया 2 एम्पियर, क्योंकि I1 और I2 की वैल्यू हमें यहाँ पर पता लगे। पहले हम पिछले वाले में वोल्टेज को इक्वेट करते थे कि V टोटल इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज में है तो इसलिए करंट सबका सेम हो गया। अब आई बात किसकी, V1 की। व्हाट इज V1, ऑब्वियसली I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू पता चल गई 2, R1 की वैल्यू पता लग गई 1, कितना हो गया 2 वोल्ट। सिमिलरली V2 क्या हुआ, I2 इंटू R2 कितना है 2 और R2 है कितना 2, कितना हो गया 4 वोल्ट। टोटल कितना हो गया यहाँ पर, दोबारा चेक कर लेते हैं, V1 प्लस V2 6 वोल्ट। यानी कि जो 6 वोल्ट की वोल्टेज है वो डिवाइड हुई, 2 वोल्ट इसको मिली, 4 वोल्ट इसको मिली। क्या करा हमने, दोबारा रिवाइज करते हैं। दो रेजिस्टर्स लिए, दोनों सीरीज में थे, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई, सिंपली अलजेब्रिक सम R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस मिल गई। टोटल वोल्टेज पता थी 6 वोल्ट, I टोटल निकाल लिया V टोटल बाय R टोटल, आ गया 2 एम्पियर। क्योंकि R1 और R2 दोनों सीरीज में थे इसलिए टोटल जो करंट है वो ही दोनों का इंडिविजुअल करंट होगा, तो I टोटल इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। अब हर एक की वोल्टेज निकाल दी, V1 इज इक्वल टू I1 R1, V2 इज इक्वल टू I2 R2, इसका 2 वोल्ट आया, इसका 6 वोल्ट 4 वोल्ट आया, दोनों को ऐड करा 6 वोल्ट आ गया हमारा क्रॉस चेक होगा आंसर। ठीक है, अब करते हैं एक और, 3 रजिस्टर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा वही चल रहा है, हर एक के टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल वोल्टेज निकालनी है, करंट अक्रॉस एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। जैसे अब 3 रेजिस्टर ले लिए अपने वो पुराने वाले, R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम। इन तीनों को कनेक्ट कर दिया अपनी उसी पुरानी बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब आप बताएंगे सीरीज में क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3। मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है सीरीज में तीनों की तीनों, तो ये कितना हो गया 6 ओम्स। आपके पास V टोटल क्या है 6 वोल्ट, तो I टोटल क्या हो जाएगा V टोटल बाय RS या R टोटल जो भी आप कहना चाहो उसको, इट बिकम्स 6/6 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब क्या कहेंगे कि यही करंट I टोटल जो करंट है वही I1 है, वही I2 है, वही I3 है, क्योंकि सारे के सारे किस में है सीरीज में है। सो I टोटल इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब चलते हैं V1 पर। V1 इज व्हाट, I1 इंटू R1, कितना हुआ I1 इज 1, R1 इज 1 वोल्ट। V2 क्या हुआ I2 इंटू R2, दैट मीन्स 1 इंटू 2, कितना हो गया 3 वोल्ट। V3 कितना हो गया I3 इंटू R3 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 3 वोल्ट। टोटल ऐड करो कितना आ गया 6 वोल्ट। V1 प्लस V2 प्लस V3 बिकम्स 6 वोल्ट।
यहाँ पर जो सारी वोल्टेज ऐड करोगे टोटल वोल्टेज है कि इसके क्रॉस वोल्टेज थी 1 वोल्ट, इसके क्रॉस वोल्टेज थी 2 वोल्ट्स, इसके क्रॉस वोल्टेज थी 3 वोल्ट्स, टोटल में 1 2 3 3 + 3 6 वोल्ट्स। ठीक है, वही करा है। तीनों रेजिस्टर्स को सिंपली ऐड कर लिया, तो रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में थे इसलिए हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। V टोटल बाय R टोटल बिकम्स आर करंट। देन करंट को क्या करा हमने, सब जो टोटल करंट है वही इंडिविजुअल करंट है क्योंकि सारे के सारे किस में है, सीरीज में है। फिर V1 क्या ले लिया, I1 × R1, V2 I2 × R2, V3 I3 × R3। ठीक हो गया, देखिए एक्सक्लूसिवली सीरीज और पैरेलल के आपको समझ में आ गया। लेट्स से सीरीज में नहीं है, कॉम्बिनेशन में है, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। लेट्स सी, अभी हम कर रहे हैं 5th क्वेश्चन। लेट्स से मेरे पास एक R1 है, वो 1 ओम का इस तरह से है, और अपना पुराना R2 2 ओम ये ऐसे है, और R3 उसके साथ पैरेलल में। अब इसी को हमने 6 वोल्ट की अपनी पुरानी वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पर R2 and R3 they are in parallel and their combination is in series with it. So I'll just mention R2 and R3 are in parallel. तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल लेते हैं पहले। 1/RP = 1/2 + 1/3, एलसीएम हो गया इसका 6, 3 + 2 5/6। तो RP की वैल्यू आ गई आपकी 6/5। अब पर हमें तो R टोटल चाहिए, तो हम लिखते हैं RP and R1 are in series. So R total is equal to RP + R1, which is equal to 1 + 6/5, which becomes equal to 11/5 ohms। ये हो गया हमारा R टोटल। V टोटल गिवन है कितना, 6 वोल्ट्स। मुझे निकालना है क्या, I टोटल। I total becomes V total by R total, which becomes 6 / 11/5। कितना हो गया, 6 5 30, 30/11 एम्पियर्स। ये टोटल करंट है, 30/11 एम्पियर्स जो है आपका टोटल करंट है। पर R1 डायरेक्टली सीरीज में है बैटरी में, तो जो ये I1 है वो ही I टोटल होगा। क्यों, मैं लिख देती हूँ, R1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी इन सीरीज, सो I total is equal to I1, which is equal to 30/11 एम्पियर्स। यानी कि I1 पता लग गया मुझे, I1 पता लग गया तो V1 भी पता लग जाएगा, क्योंकि V1 is equal to I1 × R1। तो कितना हो गया, 30/11 × 1, which becomes 30/11 volts। पर टोटल वोल्टेज क्या है यहाँ पर, टोटल वोल्टेज है मेरे पास 6 वोल्ट्स। यानी कि 30/11 वाला पार्ट तो इसके पास चला गया, कितनी वोल्टेज आ गई इसके पास, 30/11 वोल्ट। बाकी वोल्टेज कहाँ गई, बाकी वोल्टेज R2 और R3 में सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो अब हम लिखते हैं कि हमारी V2 और V3 की वैल्यू क्या है। V2 और V3 की वैल्यू इक्वल है, और वो कितनी है, V टोटल - 30/11। 30/11 V टोटल कितना आपका 6, और ये 30/11, तो कितना हो गया 66 - 30/11, which becomes 36/11 volts। इनकी V2 और V3 की वैल्यू कितनी है, 30/11 volts। अब देखते हैं करंट क्या है यहाँ पर, यहीं से देख लेते हैं। I2 कितना हो जाएगा, I2 will become V2/R2। V2 आपका 36/11, R2 कितना है, R2 है 2, तो ये हो जाएगा 18/11 एम्पियर्स। अब बात करते हैं किसकी, I3 की। I3 कितना हो जाएगा, V3/R3, which is equal to again 36/11 × 3, तो ये हो गया 12/11 एम्पियर्स। हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है भी नहीं है। अब क्या करते हैं, 18/11 और 12/11 को ऐड करते हैं, क्या आया 30/11, यानी कि क्या आ गया वो टोटल करंट।
कि जो टोटल करंट था 30/11 यहाँ पर जाकर डिवाइड हुआ I1 और I2 में, यहाँ तक वो 30/11 ही था। इन दोनों को सेम वोल्टेज मिल गई पर करंट इनका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जो I2 का करंट है वो कितना है 18/11 और I3 का कितना है 12/11। जरा जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या करा हमने। यहाँ पर R2 और R3 को दोनों में को हमने देखा ये पैरेलल में है, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली। फिर देखा R1 इसके साथ सीरीज में है, तो जो पैरेलल में रिजल्ट आया था उसको R1 के साथ ऐड कर दिया, मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस हो गई। अब जो V टोटल की वैल्यू है वो है 6 वोल्ट्स। इससे I टोटल निकाल लेते हैं, V टोटल पे R टोटल हमारा आ गया 30/11 एम्पियर्स। अभी जो पहला रेजिस्टर था वो डायरेक्टली बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो टोटल करंट है वही R1 का करंट होगा। यानी लिख लिया I टोटल इज इक्वल टू I1, तो 30/11 एम्पियर्स आ गया। अब इसकी वोल्टेज क्या होगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू 30/11, R1 लिखा ही है तो आ गया 30/11 वोल्ट्स। यानी कि इसने 30/11 वोल्ट्स ले ली। आपने टोटल वोल्टेज दी थी 6 वोल्ट्स, 30/11 वोल्ट्स, इसी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। यानी कि जो बचा हुआ है इसमें से वो इन दोनों को इक्वल मिलेगा। इक्वल क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो V टोटल आपका 6 वोल्ट माइनस 30/11 बिकम्स द वोल्टेज अक्रॉस द टू। ये इसलिए हमने V2 इज इक्वल टू V3, V टोटल माइनस 30/11। ठीक है, अब यानी कि हमें V2 और V3 के क्रॉस वोल्टेज मिल गई है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, I2 एंड I3। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2/R2, V2 की वैल्यू पता है हमें, R2 की वैल्यू भी पता है। सिमिलरली I3 की वैल्यू भी पता है V3/R3। अब इन दोनों का आप ऐड करोगे वो टोटल आएगा, आपका चेक हो गया आंसर। 18/11 प्लस 12/11 बिकम्स 30/11। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा सिमिलर। अब क्या करते हैं, ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने 1 और 2 ओम के रेजिस्टर्स, 1 ओम का रेजिस्टर और 2 ओम का रेजिस्टर आपस में सीरीज में लगा देते हैं और इसके साथ अपना R3 जो है वो पैरेलल में कर देते हैं। कोई पुरानी 6 वोल्ट्स की बैटरी। अब क्या लिखेंगे, R1 and R2 आर इन पैरेलल और सीरीज। R1 and R2 आर इन, R1 and R2 आर इन सीरीज दिख रहे हैं आपको सीरीज में। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 3 ohms. Now what is, now R3 and RS are in parallel. So 1 by R total is equal to 1 by R3 plus 1 by RS. That means 1 by 3 plus 1 by 3 हो गया आपका 2/3। R टोटल की वैल्यू मुझे पता लग गई, R टोटल की वैल्यू हो गई 3/2 ohms, 3/2 ohms। ये हो गई R टोटल। V टोटल की वैल्यू हमें पता ही थी 6 वोल्ट्स। What is I total? I total is equal to V total by R total. That means 6 divided by 3/2, तो ये कितना हो गया 12/3 which becomes 4 amperes. 4 amperes becomes the total current, क्योंकि टोटल करंट यहाँ पर जो आ रहा है वो है 4 एम्पियर्स। बट ये करंट डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R1 R2 का कंबाइन और R3 का कंबाइन। एक तो कोई कहेगा इक्वली डिवाइड होगा, ये तो 3 है, भी ठीक है कि 4 एम्पियर्स और 2 एम्पियर्स रहेगा 2 एम्पियर्स। पर हम अपने उसी प्रोसीजर से चल रहे हैं, लॉजिक नहीं लगा रहे एट द मोमेंट, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन और आ जाते हैं और बाई चांस वैल्यू सेम नहीं होती है, तो हम 3 पुराने रजिस्टर से काम चला रहे हैं। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हम लिख सकते हैं R3 is parallel to the battery, तो V टोटल जो होगा वो ही V3 होगा। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू हाउ मच 6 वोल्ट्स। इनकी इसके क्रॉस में करंट निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। I3 इज इक्वल टू V3/R3, दैट मीन्स 6/3
which becomes 2 amperes. I3 क्या हो गया 2 amperes हो गया। अब 2 amperes करंट यहाँ पहुंच गया तो बाकी बचा हुआ करंट क्या होगा, बाकी वाला करंट जो होगा जो I1 का करंट और I2 का करंट तो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, बिकॉज R1 एंड R2 आर इन सीरीज। अब जो इसकी ऊपर वैल्यू क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू I टोटल माइनस I3। यहाँ लिख देते हैं क्लियरली ना, इज इक्वल टू I टोटल माइनस I टोटल कितना 4, I3 कितना 2, इट बिकम्स 2 एम्पीयर अगेन। ठीक है, पिछले वाले केस में वोल्टेज ऐसे के लिए करा था, इसमें करंट के लिए करा। अब चलते हैं V1 क्या होगा, V1 इज I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू निकाल ली थी आपने 2, R1 की आपको पता है आगे 2 वोल्ट्स। V2 की वैल्यू क्या होगी, I2 इंटू R2 विच बिकम्स 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। ऑब्वियसली 2 प्लस 4 6 वोल्ट्स हो गया। दोबारा एक बार चेक करते हैं क्या करा हमने, R1 और R2 दोनों आपस में क्या है सीरीज में है, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकाली 3 ओम्स आ गई। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये जो थर्ड रेजिस्टर है वो पैरेलल में है, तो 1/RS 1/R3 प्लस 1/RS इनका ऐड कर लिया रेसिप्रोकल्स को, आपके पास आ गया 3/2 ओम्स। V टोटल है 6 वोल्ट्स, I टोटल हो गया V टोटल बाई R टोटल, तो आपका आ गया 4 एम्पियर्स। 4 एम्पियर्स टोटल करंट है। जब यहाँ पर जाएगा टोटल करंट डिवाइड होगा। अब डिवाइड तो होगा, एक तो तरीका है रेशियो ऑफ रेजिस्टर से निकालने का कि आपके पास जो भी रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स होता है उसका इन्वर्स रेशियो करंट का होता है, पर हम उस लॉजिक से ना चलकर दूसरी तरीके से कर रहे हैं इसको। ये जो रेजिस्टर है डायरेक्टली बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसकी जो वोल्टेज है बैटरी की वही इसकी वोल्टेज होगी, आ गया 6 वोल्ट्स। अब बस V टोटल की वैल्यू आ गई है और V3 की वैल्यू आ गई है, तो I3 की कैसे निकालेंगे, V3/R3 मेरे पास आ गया 2 एम्पियर्स, क्योंकि 2 एम्पियर्स करंट यहाँ चला गया और जो भी टोटल करंट था -2 एम्पियर्स R1 R2 को इक्वल मिलेगा, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में है। तो I1 और I2 इक्वल है, विच इज इक्वल टू I टोटल माइनस I3 बिकम्स 2 एम्पियर्स। अब V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इंटू R1। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इंटू R2। अब चेक भी कर लेते हैं, V1 और V2 दोनों 6 वोल्ट्स के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर हो गया, वही सिंपल से क्वेश्चंस बिल्कुल थे। लेट्स से ये CBSE में आया वाला क्वेश्चन है सेम ही चीज। ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी थी, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इस तरीके से। ये R1 है 4 ओम का, R2 है 15 ओम का, ये कनेक्शन इस तरह से है। फिर आपकी एक और का रेजिस्टर लगा हुआ है R3, वो भी 15 ओम का है, और ये जो R4 है वो है 30 ओम्स का। क्वेश्चन वही है, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन टोटल करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, टोटल करंट की तरह से टोटल करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ये क्वेश्चन था। वैसे वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, करंट निकल जाएगा तो वोल्टेज निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं, बट इन्होंने पूछा था फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट, देन करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये 15 ओम, ये 15 ओम है, 30 ओम। अब इस सर्किट को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये R3 और R4 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और R2 भी उसके साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि R2 R3 R4 तीनों की तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसको इक्विवेलेंट बनाना चाहें ऐसे लिख सकते हैं इसको कि आपकी ये हो गई 10 वोल्ट की बैटरी, आपके साथ ये R1 लगा हुआ है 4 ओम का इस तरह से। उसके बाद ये जितने भी रेजिस्टर्स हैं इनको हम मान सकते हैं, ये R2 साथ में इसके R3 और ये R4, ये सारे के सारे कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं।
लेट्स इसको मैं ए पॉइंट मान लेती हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो ये आपका ए बी एक्सक्लूसिव है। अब देख रहे हैं R2, R3, R4 ये सारे के सारे पैरेलल में हैं, तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल देते हैं। 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। ये टोटल निकल गया, कितना आ गया है 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/30। सारे पैरेलल में आप देखें। अब कितना हो गया इसका एलसीएम हो गया 30, हो गया 2 + 2 + 1 which becomes 5/30 which is equal to 1/6. So what is RP? Let us write over here. RP is equal to 6 volts. अब इसके साथ ये लगा लेते हैं, R1 and RP are in series. So R total is equal to R1 plus RP which is equal to 4 plus 6 which is equal to 10 ohms. What is V total? V total is equal to 10 volts. So I total is equal to V total by R total which is equal to 10/10 which is equal to 1 ampere. इनकी टोटल करंट आपका कितना आ गया 1 एम्पियर करंट शो कर रहा है, ठीक है। टोटल करंट इज 1 एम्पियर, सबको दिख रहा है 1 एम्पियर टोटल करंट है। अब 1 एम्पियर करंट तो टोटल करंट है, लेट्स से इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल देते हैं इसके क्रॉस, क्योंकि फिर बाकी के सारे जितने भी हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो जो इसके क्रॉस R2, R3, R4 इन सब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहना है, सेम रहना है। आई टोटल ये है तो I1 भी इतना ही होगा, आई टोटल इज इक्वल टू I1 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो व्हाट इज V1? V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 which is 1 into 4 which is equal to 4 volt. बाकी की जो वोल्टेज है उन सबके अलोंग सेम रहती है, यानी कि V total V2 is equal to V3 is equal to V4 is equal to V total minus V1. How much is it? It is equal to 10 minus 4 which is equal to 6 volts. इनके हर के क्रॉस वोल्टेज क्या रह रही है, सेम रह रही है। क्या रह रही है 6 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट, क्योंकि 4 वोल्ट तो इसने ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि करंट क्या होगा, जो I1 हो जाएगा वो हो जाएगा V1 बाय I1 क्या हो जाएगा V1 बाय R1, ये तो निकाल ही लिया था हमें, कोई दिक्कत ही नहीं। अब चलते हैं I2 पे, I2 क्या हो जाएगा V2 बाय R2, V2 बाय R2 क्या हो गया इसमें, V2 इज 6 बाय 15 एम्पियर। R3 क्या हो जाएगा दोबारा 6 बाय 15 एम्पियर, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। तो I3 इज ऑल्सो, आई विल जस्ट राइट ओवर हियर, I3 इज ऑल्सो क्या हो जाएगा V3 बाय R3, तो हो गया है 6 बाय 15 एम्पियर। और I4 क्या हो जाएगा V4 बाय R4 विच इज इक्वल टू 6 बाय 30 एम्पियर। इस तरह से सारे करंट और वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। दोबारा बताते हैं, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें R3, R4, R इन सबका, इनको अगर ऐसे ले लिया जाए, इसको ऐसे ले लिया, सब के सब ये पैरेलल में R2, R3, R4 इन तीनों जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन थे उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया। 2 की 15 थे, 1 की 30, एलसीएम आया 30, 2 + 2 + 1 5/30 1/6 हो गया, तो 8 पैरेलल में हो गया 6। इसके साथ ये जो R1 है वो सीरीज में है, तो उसको सिंपली ऐड कर दिया, 10 ओम आ गया। V टोटल 10 वोल्ट है, I टोटल क्या हो गया V टोटल बाय R टोटल, दैट बिकम्स 1 एम्पियर। अब क्या करना है, अब ये जो I टोटल है वो I1 सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है। मेरे को I1 की वैल्यू पता लग गई, I1 की वैल्यू पता लग गई तो V1 की वैल्यू पता लग जाएगी, I1 इंटू R1 निकाल दी 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट तो इसने ले लिया, बाकी 10 माइनस 4 इन तीनों में इक्वली गया। इक्वली क्यों गया, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि तीनों को 6 वोल्टेज मिली। अब इनके अक्रॉस आपको करंट निकालना है, तो आप क्या लिखोगे I1 इज इक्वल टू V1 बाय R। तो V1 आपको पता है 6, R1 क्या है इसका 15। सिमिलरली इसका भी V2 ये था V2 बाय R2, कितना हो गया 6/15। ये क्या हो गया I3 इज V3 बाय R3 6/15। I4 इज इक्वल टू V4 बाय I4, दैट मीन्स 6/30। ये आपकी सारी कनेक्ट लाइन, ठीक है।
ये तो जितने भी हमने सर्किट देखे इनमें सब कुछ क्लियर दिखता था कि कौन सी चीज़ सीरीज में लगी हुई है, कौन सी चीज़ पैरेलल में लगी है। केवल इस सर्किट जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट नहीं होता, हिडन होता है। लेट्स सी, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। एक बार को कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सीरीज में है, पैरेलल में है, किस तरह से है। देखिए पहले मैंने बनाया तो सारे सीरीज में थे, पर दो वायर ऐसे लगा दी गई जिससे कुछ चेंज आ गया। कभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि सीरीज में है पैरेलल में है कॉम्बिनेशन, सोच कर देखिए कि करंट इस पॉइंट पे आकर क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा डिवाइड। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे इसमें भी मैं देखूँ, यहाँ पर अगर कोई करंट था, लेट्स से यहाँ पर I1 था और लेट्स से I2 था, ये जाते जाते जब यहाँ पर आएगा क्या वो डिवाइड होगा? यस, अगर डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी के अकॉर्डिंगली देखते हुए हम इस सर्किट को लिख सकते हैं कि 2R ये हो गया, 2R ये हो गया और R ये हो गया। ये जो एक्स्ट्रा वायर लगाने से ही, सिंपली एक्स्ट्रा वायर जो हमने यूं लगा दी है, इसके कारण क्या होगा? अगर आप वैसे देखें, ज़्यादा करंट इसमें होगा डिस्ट्रीब्यूट, कम करंट इसमें आएगा। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, डिवाइड हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, ये ब्रांचिंग हो गई इसकी, इसलिए तीनों के तीनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। और इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। LCM होगा 2R, 1 plus 1 plus 2, which becomes 4/2R, और R total is equal to R/2, जो भी यूनिट ओम्स है, ठीक है। यहाँ दिखने में पता नहीं लग रहा कि सीरीज तो तीनों के तीनों ये पैरेलल नहीं है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन। It's A, B, C, इस तरह से ट्रायंगल। अब क्या हुआ है? तीन और वायर्स ली गई और ऐसे कनेक्ट कर दिया। सबकी रेजिस्टेंस सेट से इक्वल है, R, 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 R और R। अब क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस BCM। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस BCM। इसमें वही चीज़ आपको सोचनी है। लेट्स से टोटल करंट यहाँ पर गया, यहाँ पर और यहाँ पर इक्वली करंट डिवाइड हुआ, इक्वली करंट डिवाइड हुआ, ठीक है। और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा। इक्वली क्यों होगा? क्योंकि देखने में लग रहा है दोनों करंट रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वली डिवाइड होगा। क्योंकि इस A, B और B के O के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा? सेम रहेगा। So just write potential drop across AB and BO is same. So AO can be ignored. ऐसा क्यों लिखा हमने? देखो क्वेश्चन था फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इस केस में क्या था कि अगर हम कह रहे हैं करंट यहाँ से गया और B तक पहुँचा, B तक जब करंट पहुँचेगा उसको यहाँ से रेजिस्टेंस और यहाँ से रेजिस्टेंस क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। तो BO और BA के लिए पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस, वो सेम रहेगा। सो दिस आई कैन इग्नोर दिस पोर्शन, दिस कैन बी इग्नोर्ड। इसको मान कर चल सकते ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। अगर ये कर ही नहीं रहा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ मान सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे हो जाएगा इसका?
दैट मीन्स आर 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 एंड आर। इनके ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा r/2, ठीक है, ये हो जाएगा r और ये r/2। इन दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है, और सिमिलर आएगा। ये हो जाएगा 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r/2 प्लस 1/r प्लस 1/r/2। इनको ऐड कर, ठीक है, लिखना जो इसका लिख सकते हैं 2/r प्लस 1/r प्लस 2/r, तो कितना हो गया 4 5 5/r और तो बिकम्स r/5। ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसे। अब एक और क्वेश्चन है, देखना दो सिमिलर क्वेश्चंस करे जाएंगे, पर अब देखना थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देखते हैं। एक पहले बात बता दूं आपको, अगर ऐसे वायर जा रही होती है इसका मतलब ये आपस में कट करते हुए आ रही है, टच करते हुए जा रही है। बट अगर वायर्स ऐसे जा रही हैं या ऐसे करके वायर जा रही है, इसका मतलब वो आपस में टच नहीं कर रही। अब हम एक मैं सर्किट बना रही हूँ, उसमें ओम है, ओम है, और ये टच नहीं कर रही, इस तरह से हो गया, और रेजिस्टर लगा हुआ 2 ओम। जैसे A B C D। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस A B, P Q R S। Find the total resistance across A and B. A and B points are like this, they are in between, in the center। अब इस वाले सर्किट को कैसे कंसिडर करेंगे? ये जो Q वाला पॉइंट है, Q वाला पॉइंट है, ये A पर हो या कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये Q वाला पॉइंट अगर A पर रख दिया जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, देख रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता। सिमिलरली ये इधर ये वाला जो R वाला पॉइंट है, ये B पे जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोबारा देखिए, ये जो Q वाला पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट कर दें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने आप 2 ओम और 2 ओम की वायर ऐसी रहेगी। सबसे टॉप पे तो 2 ओम की वायर है ही, जो कि PS वाली है। साथ में मैं कह रही हूँ ये वाली जो वायर जो S से जा रही थी उसको यहाँ A पे शिफ्ट कर दें या P पे शिफ्ट कर दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके 2 ओम और 2 ओम यहाँ पर ऑन हो गए। सिमिलरली ये वाली जो वायर है R वाली वायर, उसको S पे कर दें या B पे कर दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी 2 ओम और 2 ओम इक्विवेलेंट हो गया। आपका A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये था, QR हो गया। सिंपल सी बात है, ये 2 ओम का एज इट इज हमने छोड़ दिया, ये QR वाला 2 ओम एज इट इज भी हमने छोड़ दिया, ये QR वाला 2 ओम भी हमने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, क्या हमने चेंज करा? हम इस वाले S वाले पॉइंट को यहाँ ले आए या यहाँ ले आए, और सिमिलरली इस R वाले पॉइंट को भी यहाँ ले आए, क्योंकि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप यहाँ ले आइए, इस वाले पॉइंट को भी यहाँ ले आइए, तो आपके ये जो AB वाले पॉइंट्स पर बीच वाले जो पॉइंट्स हैं ये इस तरह से आ जाएगा। तो इनकी आपकी ये टू आपस में क्या है,
पैरेलल में है, 4 4 2 एंड 2। दोबारा देखो, पी क्यू आर एस एक था, उसमें पी एस पे एक 2 ओम लगा हुआ था, क्यू आर पे भी 2 ओम लगा हुआ था। पी और आर के बीच में एक कंटिन्यूस वायर थी, इसमें 2 ओम और एक और 2 ओम लगा हुआ था। फिर क्यू एस भी कंटिन्यूस वायर थी, आपस में टच नहीं कर रही थी, वो भी उन पे भी 2 ओम और 2 ओम लगा हुआ था। मैंने क्या करा, ये क्यू आर वाली वायर जो है वो यहाँ रखकर यहाँ रख दी, ठीक है। और सिमिलरली ये जो ई वाली वायर थी यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी, यहाँ एक ही बात है। तो ये क्या हो गए, ये जो 2 ओम और 2 ओम 4 ओम एक साथ हो गए, ये 2 ओम और 2 ओम 4 ओम एक साथ हो गए, ऊपर 2 ओम और ऊपर 2 ओम। एक इस सर्किट को हम इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ओम 4 ओम 4 ओम और ये 2, ठीक है। अब आर टोटल क्या हो गया, 1 बाई आर टोटल 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2। एलसीएम इन सबका 4 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 4 5 6। तो आर टोटल बिकम्स इक्वल टू 4 बाई 6 विच इज इक्वल टू 2 बाई 3, ठीक है। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो जानबूझ के इसको, ये जो हमने करा, इसको ओवरलैपिंग देखने में लगता है दोनों सेम ही, ये टच कर रहे हैं, इंटेंशनली बनाया, ये टच कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम, ये भी 2 ओम 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 और यहाँ पे भी लगा दिया 2 ओम। देखने में दोनों सर्किट सेम है, पर कुछ फर्क है। फर्क क्या है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है कि ये 2 ये आपस में सीरीज में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीरीज में ये 2 ओम ये 2 ओम सीरीज में नहीं लगे हुए, ये आपस में कैसे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं पैरेलल। पहले ये थे 2 + 2 4 आ गया था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, सॉरी पैरेलल में लगे हुए हैं, सीरीज में नहीं लगे हुए हैं। तो इस केस में क्या स्ट्रक्चर बनकर आता है, देखते हैं। देखिए ये 2 और ये 2 आपस में पैरेलल में, ये 2 और या ऐसे देखते हैं, ये दोनों आपस में, जिसको तो मैं एस पॉइंट मान लूँ, तो पी एस और क्यू एस आपस में कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। दोनों पॉइंट्स को आप टच करा सकते हैं। यहाँ पर इसको कुछ और ही मानना पड़ेगा, ओ चलो, हियर resistance across PO and resistance across QO, they are in parallel. So I can just squeeze this thing and put it over here. Similarly, this OS और OR ये भी आपस में क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। देख पा रहे हैं आप, ये PO और QO आपस में पैरेलल में, इन दोनों को यूँ जोड़ देते हैं पैरेलल में। Similarly, SO और OR ये भी आपस में पैरेलल में। तो इस वाले पोर्शन को हम ऐसे क्यों ना लिख दें, 2 ये कौन सा वाला पोर्शन हो गया, PO और QO वाला, ये PO और ये QO वाला, समझ पाए आप, ओके। अब इसको कंबाइन करा इन दोनों के साथ, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, ठीक है। अब इसके ऊपर सिंगल एक 2 ओम का लगा हुआ था और इसके नीचे भी एक सिंगल 2 ओम का लगा हुआ था। सर्किट में फर्क दिखा आपको, ठीक है। अब ये 2 ओम और 2 ओम जो आपस में जब हम इनको कंबाइन करेंगे बन जाएगा 1, ये और 2 और ये 2 करेंगे तो ये क्योंकि आपस में पैरेलल में बन जाएगा 1। तो अब मेरा सर्किट स्क्वीज होकर हो गया 2 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, देन अगेन दिस इज 2, दिस मेक्स व्हाट 2 ohm, 2 ohm and another 2 ohm. So 1 by R total is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 क्योंकि सारे पैरेलल में हैं, 3 by 2 और R total is equal to 2 by 3 ohm. इसलिए आंसर में फर्क आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ये 2 क्लियर हो गए आपको।
आते हैं ट्राइंगल पे। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन बहुत आ गए। पहले एक बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं, तीनों जगहों से एक और वायर, एक और वायर, एक और वायर ऐसे आ रही है, जो कि दोबारा एक और ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, और इन सब की रेजिस्टेंस क्या है, सेम। अब बताइए इन दोनों एंड्स के अक्रॉस चले जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी और सी एंड के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? सबकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब आप इन दोनों को देखो, इस वाले पॉइंट को, इस वाले ए डी और डी ई, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ए सी और डी एफ ये भी आपस में पैरेलल हैं। सिमिलरली ई एफ और बी सी ये भी आपस में पैरेलल हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनकर बैठता है वो क्या बैठता है? ये हो गया r/2, ये हो गया r/2, क्योंकि आपस में पैरेलल में 1/r + 1/r 2/r हो गया, और इसका रेसिप्रोकल r/2, और ये जो हो गया ये भी r/2, यानी कि आपका ये a b c इतना रह गया। अब देखेंगे r/2 तो क्या है आपस में सीरीज में, उनके साथ ये पैरेलल में। तो r/2 हो गए सीरीज में, ये दोनों मिलाकर हो गए r, और इसके साथ ये पैरेलल में, तो 1/r टोटल बिकम्स 1/r plus 1/r/2, which is equal to 1/r plus 2/r, which becomes 3/r. R total is equal to r/3 ohms. एक और क्वेश्चन करते हैं, सीरीज इनफाइनाइट सीरीज वाला, एनसीईआरटी में भी गिवन है वाला क्वेश्चन। ओके, इनफाइनाइट सीरीज मतलब कि इन नंबर ऑफ रेजिस्टर लगे हुए हैं। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसमें मेरा एक 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, लेट्स से 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, फिर दोबारा एक 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, फिर 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। इनफाइनाइट सीरीज है, इन्फिनिटी तक चलती है। अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस की फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन इज फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट अक्रॉस ए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, let us assume, let us consider the resistance of infinite series is equal to x। यानी कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट मैंने बना दिया 1 ओम यहाँ पर, 2 ओम यहाँ पर, और इसके साथ जो पैरेलल में सब कुछ चल रहा है वो लेट्स सी x है, और ये आपका ए पॉइंट हो गया, आपका ये बी पॉइंट हो गया। तो हम पहले 2 ओम्स और x को निकाल लेंगे पैरेलल में। तो 1/rp इज इक्वल टू 1/2 + 1/x, विच बिकम्स एलसीएम हो गया इसका 2x, x + 2। दैट मीन्स rp इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय x + 2। नाउ rp एंड 1 ओम आर इन सीरीज, तो मेरे पास R टोटल की वैल्यू हो जाती है 1 + rp, विच इज इक्वल टू 1 + 2x बाय x + 2। बट हमने शुरू में कंसिडर कर लिया था कि इनफाइनाइट सीरीज की रेजिस्टेंस क्या है, x है। तो व्हाट इज R टोटल? R टोटल भी x रहेगा। जब हमने शुरू में कर लिया कि इन्फिनिटी का थोड़ा पार्ट ले लो या पूरा पार्ट ले लो, उसकी रेजिस्टेंस x है, तो R टोटल ले लिया या उसका थोड़ा पार्ट ले लिया, रेजिस्टेंस हमें क्या माननी पड़ेगी, x। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x। R total is equal to x. x 1 + 2x by x + 2x divided by x + 2। इनका एलसीएम ले लेते हैं। x is equal to x + 2 + 2x divided by x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x + 2 is equal to x + 2 + 2x। हो गया x² + 2x इज इक्वल टू x + 2 + 2x। दोनों तरफ 2x से कैंसिल हो जाएगा, x² - x, ये क्या लिया था मैंने, x + 2 लिया था, x -x - 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
तो आपको पता है सोल्यूशन जो होता है वो होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उससे सोल्यूशन होता है। तो ये उसी फॉर्मेट में चलते हैं। माइनस बी मतलब -1 का 1 तो गया +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है +1 -1 का होल स्क्वायर +1 हो गया -4ac -4 इंटू 1 इंटू -2 दैट मीन्स +9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये सोल्यूशन इसका आ जाता है 1 प्लस माइनस √8, हाँ इट बिकम्स √9/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 and 2। इनके इसके सॉल्यूशंस आ जाते हैं। अगर 3 को प्लस लें तो 4/2 विच बिकम्स 2 और इसको वो लेने माइनस ले लें तो 1 माइनस 3 बिकम्स -2 -1। दो सोल्यूशन होते हैं। इनकी इसकी टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल इज इक्वल टू 2 -1 तो लेंगे इसलिए 2 लेंगे। Okay, that's all for today, and please keep revising. We will join again with few more questions related to Kirchhoff's rule, which we'll be discussing in the next class.